فما له من قوة ولا ناصر والسماء मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो मेरा जीना मेरा मरना Bandikum. Hoshal Gadanis and good morning to one and all present here. On behalf of the Management Committee of the Mysore Old Age Home and the Ladies Wing Core Committee, I, Zainab Munir, would like to welcome our Chief Guest of the Day, our Founder Member Core Committee, Mysore Old Age Home, who holds Masters in Sociology from the University of Mysore, Post-Graduation in Business Management from Newland, Post-Graduation in Education from Australia, holds an Australian nationality, Mrs. Farzana Tabassum. Ladies and gentlemen, join your hands in welcoming her. Hayakallah Habibti. I would like to extend my hearty welcome to another impressive personality who has worked tremendously for the upliftment of the community in various fields, especially in the unemployment of the youth. Member of the Zilla Parishad Hassan, Muhammad Sayyid Akram. A big round of applause, ladies and gentlemen. Ikramakallah sir, extending my warm welcome to a guiding and an inspiring personality. A once upon a time politician, an educationist, a social worker, the backbone of our very organization, our very own President of Mysore Old Age Home, Sheikh Maqsood Al Hussain. A big round of applause, ladies and gentlemen. Hayakallah Ya Sayyidi. A very hospitable welcome to all of you present here, the diligent and hard-working core committee members. A cheerful welcome to all the talented, multifaceted and beautiful members of the female core committee team. Hayakumullah members. A pleasing welcome to all the inmates and staff present here. Extending my cordial welcome to all the guests and the audience who are amongst here today. Thank you so much for being. Wish you all a very happy 73rd Republic Day. It gives me an immense pleasure, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, to be here today to celebrate India's national festival as a proud overseas citizen of India and a core committee member of this wonderful MOH organization. I am grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for granting me an opportunity to work for such an imperative cause of helping the underprivileged community of our society. अपने इनमेट्स के लिए भी सलाम है सबके लिए। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ यूँ कहना चाहती हूँ। ख्वाबों के ख्यालात को ताबीर में बदलना, ख्वाबों के ख्यालात को ताबीर में बदलना हर एक को नसीब नहीं होता, पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 2 साल पहले एक ऐसे शख्स जो हमारे दरमियान है, जनाब प्रेसिडेंट शेख मकसूद सर के दिल में एक ऐसी बात डाली कि कम्युनिटी मेंबर्स के लिए कुछ कर सकें। इस इदारे की बुनियाद उन्होंने रखी, मुझे और कुछ और साथियों को उनके साथ शामिल किया। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। ये तारीफ़ के वैसे हमारी काबिल नहीं है, खुद अपने काम की वजह से ये सराहे जाते हैं। कुछ यहाँ मौजूद उस वक्त के फाउंडर मेंबर्स हैं और कुछ नहीं है, फिर भी मैं उन सब का शुक्र अदा करती हूँ। इस बात पर मुझे मजरूर सुल्तानपुरी का एक शेर याद आया। सर यूँ निकल पड़े थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया, जिसमें हम सारे मेंबर्स आज शामिल हो गए हैं।
अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि ये कारवां यूं ही सबके साथ मिलजुल कर चलता रहे, बेकसों की मदद करता रहे और रब को राज़ी करते हुए बुनियादों को छूता रहे। आज मुझे इन सब हजरात जो हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में पनाह ले रहे हैं देखकर अपने मरहूम वालिदैन की याद आ रही है। जब ये इदारा बना था और ऐसे बेकस और मजबूर वालिदैन की खिदमत देने के बारे में सुनी अपने नंद डॉक्टर फरहत खानम से, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनूं और जो मुझसे हो सकता है मैं इसमें कर सकूं। अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान भी है, अपनी इबादत के बाद, अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत के बाद हम वालिदैन की बहुत ज़्यादा उनके साथ हुस्न सलूक करें और ख़िदमत करें। अगर हमारे नहीं हैं तो इन लोगों को भी मैं वही पोजीशन पे देखना चाहती हूँ। इस इदारे में जो ख़वातीन और हज़रात हैं जो किसी मजबूरी की वजह से या उनके बच्चों की कोई मजबूरी होंगी जिसकी वजह से हमारे लिए एजाज़ है कि वो हमारे पास यहाँ आकर पनाह ले रहे हैं, तो इनको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ और कहती हूँ कि इन सबको अल्लाह सुब्हाना व तआला अपना हिफ्ज़ व अमान में यहाँ पर इनको खुश रखे। इनके बारे में कोई यूँ कहूँगी कि प्यार को ख़यालात के अल्फाज में बता नहीं सकते, इसी तरह वालिदैन के मोहब्बत का सिला लौटा नहीं सकते। तो औलाद का फ़र्ज़ ये था, अगर इनकी नहीं है तो ये समझें कि हम इनकी औलाद हैं, इनके भाई बहन हैं जो इनके लिए कर रहे हैं। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे भी चुना और दूसरों को भी एजाज़ बख्शा कि इस मिशन में हम शामिल हैं। इस इदारे के साथ पिछले 2 साल से मैं काम कर रही हूँ। जब भी कोई अपील आती है, इस इदारे का सिर्फ हमारा मकसद था कि हम ओल्ड एज होम बनाएं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला और ज़्यादा खिदमत लेना चाह रहे थे, तो हमें और ज़्यादा अपील्स, और ये जो पेंडेमिक शुरू हुआ कोरोना कोविड-19 का, तो बहुत ज़्यादा अपील्स हमारे पास आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ओल्ड एज होम से क्या क्या काम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई अपील आई है तो शेख मकसूद सर मजबूत खड़े होकर, जैसे ही इनको हम लोग सपोर्ट इनका बनते थे तो ये दिन रात काम में लग जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला इस खिदमत को कबूल फरमाए। इन जानलेवा हालात में भी उनको हम जब रोकते भी थे तो भी वो खड़े हो जाते थे कि मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूँ अगर आप लोग मेरे साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको उसका अजर दे, इनकी फैमिली जो इसके पीछे इनका सपोर्ट बनी है उनको भी अजर दे और इनके बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। मेरी दिली तमन्ना थी जब हमारा ये ओल्ड एज होम शुरू हुआ कि हम लेडीज़ को भी इस इदारे में शामिल करें और उनकी भी यहाँ पे खिदमत और देखभाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हसरत भी पूरी हो रही है कि आज हमारा लेडीज़ विंग स्टार्ट हो रहा है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस बात पर एक हदीस पेश करना चाहती हूँ और इस पर अमल खुद भी करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि हम सारे कोर कमेटी मेंबर्स इसी नीयत से हम इस इदारे में काम करें। वमन अबी उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व बग़ज़ लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, रवा अबू दाऊद। इस हदीस का मुबारका का तर्जुमा ये है कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए नफ़रत की, अल्लाह के लिए कुछ दिया और अल्लाह के लिए मना किया तो इसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमारे भी सारे नियतों को इन्हीं में शामिल फरमाए। आमीन। आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे दिलों में इन बुजुर्ग हजरात और ख़वातीन की मोहब्बत है। ये मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की
खातिर हो। यहाँ पर जो माल हम लगा रहे हैं वो भी रज़ा इलाही की तालिब है और ना कि शोहरत हासिल करना मकसूद है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के हर काम, तमाम काम अल्लाह की खातिर करें तो यही ईमान का कामिल दर्जा है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इस मौके पर मैं कोर कमेटी मेंबर्स, प्री कोर कमेटी मेंबर्स जो हमारे साथ थे, एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो साथ हैं, डोनर्स फॉर ओल्ड एज होम के सपोर्टर्स, मैनेजर्स, केयर टेकर जो दिन रात इन हजरात की ख़वातीन की खिदमत में लगे रहते हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। इनको इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि इनके जज़ाए खैर अता करे और इनके दिलों को सुकून अता फरमाए और इनके लिए बेहतरीन अजर अता करे। मैं अपनी बात को इस दुआ से ख़त्म करना चाहती हूँ कि अल्लाह हमारे इस खैर ख्वाही के जज्बे को कबूल फरमाए, हमारे बच्चों को भी कौम की खिदमत का जज्बा दे और हमारे माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मैं अपने भाई सैयद अकरम से गुजारिश करती हूँ कि मेरी तरफ से और टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेख मकसूद सर को एक स्मॉल टोकन दिया जाए। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग सर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओल्ड एज होम के लिए एक छोटा तोहफा। मुकाम काबिल एहतराम मेरे बहन फरजाना तबस्सुम साहिबा, मेरे भाई सैयद अकरम साहब ज़िला परिषद मेंबर हासन, असफत पाशा साहब, आदिल भाई, एहसान भाई, अमीन भाई, बशीरुद्दीन साहब, सफदर साहब, मुजिदा मैडम और तमाम नाम तमाम कोर कमेटी मेंबर्स, फीमेल विंग के कोर कमेटी मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम को दिल के गहराइयों के साथ इस रिपब्लिक डे की 73rd रिपब्लिक डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब तो तमाम को मुबारक हो। बड़ी खुशी का वक्त है। मैडम से हम जो ना 2.5 साल से जो ना बातचीत करते रहते, चैटिंग करते थे, मैसेज भेजते थे। आज वो खुश नसीब दिन आ ही गया। वो मैडम यहाँ तशरीफ आ गए। काफ़ी दिनों से आना चाहते थे लेकिन ये पैंडमिक वजह से आ नहीं पाए। और मैडम तो हम लोगों की इतना मदद करें। मैं बस इतना कहता हूँ कि हमारे थोड़े से एफर्ट्स हैं लेकिन मैडम की हिम्मत है। आपकी हिम्मत की बदौलत ये जो भी है, आपकी हिम्मत की बदौलत है मैडम। हम नाचीज़ हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कि आपकी हौसला अफजाई, आपकी हिम्मत, आपका कंट्रीब्यूशन का नतीजा जो है ना आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल से हमारा ये ओल्ड एज होम चल रहा है। एकदम ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास। हर महीना अकाउंट्स पेश किया जाता है। आप तो ग्रुप में ही दिखे थी। इंशाल्लाह हमारे ट्रेजरर साहब बशीरुद्दीन साहब ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे और आपको बताते हैं मुझे यह खुशी होगी कि हमारा हिसाब किताब नवंबर तक का ऑडिट हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट आई है, हमारे ट्रेजरर साहब के पास है। टू सस्टेन आवर ऑब्जेक्टिव्स वी आर प्लानिंग टू हैव आवर मैगजीन वेरी सून। The total cost of the magazine will be around 1,25,000 and 1,40,000. We are planning to publish around 1,500 magazines. इसमें जो है ना एक पेज का 6,000 रुपये we are charging.
एक फुल पेज ये फोर्सेस का, हाफ पेज का 3000 रुपीज़ एंड क्वार्टर पेज का 2000। एंड ये एडवर्टाइजमेंट देना तो ये नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट बस नाम है, लेकिन उसका मकसद ये है कि हमारे ओल्ड एज होम को कुछ ना कुछ एक इनकम का ज़रिया हो जाए टू सस्टेन आवर ऑब्जेक्टिव्स। इंशाल्लाह हमारे ख्वाजा अभी अब तक जो है ना 25-30 एडवर्टाइजमेंट्स बुक किए कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं भी एक 10-12 किया हूँ और हमारे काफ़ी मेंबर्स भी जो है ना काफ़ी किए हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, आप लोगों से, सारों से, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट देना आपका बिजनेस होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम जस्ट टू हेल्प अस, ये दे सकते हैं। दूसरा जो है ये किराए का है, 50,000 रुपये इसका किराया है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द CA सेट या अपना खुद का एक हम कोशिश करें कि आधा एकड़ से 1 एकड़ जगह हमें मिल जाए, ताकि हम जो है ना कम से कम 100 लोगों का मेल डॉर्मेट्री एरिया, एक 50 to 70 फीमेल डॉर्मेट्री एरिया, और उसमें एक मुस्तकिल मस्जिद। उसके अलावा फीमेल के लिए मैसूर एजुकेशन हब, मैडम तो आप बहुत अच्छा जानते हैं, मैसूर एजुकेशन हब मैसूर में जो है ना कश्मीर से लेके कई दूर दराज मकाम से जो है ना लड़कियां, कौम की लड़कियां जो है BDS MBBS इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं, वहाँ जो है ना कौम की लड़कियों को एक मुस्तकिल कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंशाअल्लाह अगर हमें जगह मिल गई कहीं से भी, जब तक ये हो गया इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी हो जाएगा, मिल गई तो उसमें मेल डॉर्मेट्री एरिया, फीमेल डॉर्मेट्री एरिया, एक मस्जिद और एक वुमेंस के लिए नॉमिनल फीस में, नो लॉस नो प्रॉफिट में, नॉमिनल फीस में एक हॉस्टल बनाने का इरादा रखते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ये काम भी ज़रूर जल्द अज जल्द होगा। आज हमने मूडा के चेयरमैन राजीव साहब को भी इनवाइट किया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आ गए तो उनके साथ उन लोगों को जाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह वो वादा किए हैं कि वो आएंगे। आज 5 बजे उनका ये ट्रिप है, इधर आएंगे, आने का वादा क्या है। मैं तमाम कौरव से दरख्वास्त करूँगा कि तमाम के तमाम 5 बजे इधर हाजिर हो जाएं, ताकि उनका जो है ना सही तरीके से उनका स्वागत करके उनको जो है ना हम वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, ये जो है रिक्वेस्ट हिम टू अलॉट अस साइट, CA सेट के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चेयरमैन से ऑलरेडी किया हुआ है, या कमिश्नर से ऑलरेडी किया हुआ है, मोडा कमिश्नर से। आज चेयरमैन आ रही है, उनसे भी हम बात रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं मैडम आपको एक साल पहले आपसे मैं दरख्वास्त की थी, आपने जो है ना मना कर दिया था, लेकिन अभी आप मना नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टीम है ये मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों को मैं ये बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि इंशाअल्लाह हमने फरजाना तबस्सुम मैडम साहिबा को मैसूर ओल्ड एज होम NRE विंग का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है। ग्लोबली इंशाल्लाह वी विल हैव आवर ओन NRE विंग ग्लोबली, और जितने मैसूर, बेंगलोर, कर्नाटक के काफ़ी लोग जो है ना बाहर रहते हैं, उन सारों का जो है ना एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनेगी। यू विल बी एडमिन ऑफ दैट ग्रुप एंड यू विल बी द चीफ ऑफ दैट ग्रुप एंड यू विल मेंटेन दैट ग्रुप। आई होप यू विल नॉट डिनाई दिस टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच, मुबारक हो। मैं आप तमाम का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जो है ना टाइम निकाल के आए, और हमारा फीमेल विंग का इंशाल्लाह आज इनाग्रेशन है, और तमाम मेरे बहनों का और मेरी बीवी का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ सा एक हफ्ते से ये 5-6 लड़कियाँ जो है ना काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे, और हमारा जो है ना ये लेडीज़ विंग जो है वॉलंटियर्स का फले फूल है।
मुझे बताते हुए फ़ख्र महसूस होती है कि फरजाना बुशरा मैडम की सरपरस्ती में अब तक 50 मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप में, फीमेल डोनर्स ग्रुप में आए हैं और सबका मैं फर्दन शुक्र अदा करता हूँ। 100 का टारगेट था, 50 हुआ है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी पूरा हो जाएगा। और इसका मकसद यही है कि हमारा ओल्ड एज होम को माहाना 1.25 लाख से 2 लाख का खर्चा आ रहा है। अगर 50 मेंबर से भी अगर माहाना 500 रुपये सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो काफ़ी मदद हो जाती है हमारी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि मंथली डोनर्स हमें मिले। मैं डॉक्टर शबीना साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो ऐसे मेंबर्स को तलाश करें जो मंथली हमें दे सके। पहले कर रहे थे आप, बस के बाद जो है ना तबीयत की वजह से, काफ़ी इश्यूज़ की वजह से आप कर नहीं पाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल करे और अल्लाह से दुआ है कि आपको पहले से ज़्यादा वो क़ुव्वत अता करे ताकि आप जो है ना हमें ये करें। मैं गुलनार मैडम साहब का, शबीना साहब का, तमाम मेंबरों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि सफदर भाई जो हमारे सामने हैं, मैडम ये मामूली शख्सियत नहीं है। सफदर भाई मुझे रिसेंटली एक इवेंट ये हुआ, यहाँ पैलेस में कुछ बीजेपी वालों का कुछ फंक्शन चल रहा था। इन्होंने आज जर्नलिस्ट वहाँ गए जो कुछ कवर कर रहे थे, तो आरएसएस के कुछ गुंडों ने इन पर हाथ पाई की, इनको जो है ना मारा, काफ़ी ये चोटी पहुँचाई। उसके बाद पुलिस का लाख लाख शुक्र के पुलिस इनको बचाया। आज आप जो बचे हैं ये जो है ना इनकी खिदमत का नतीजा है। और इनके वालिद साहब मेरे अच्छे दोस्तों में थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है ना आला से आला मुकाम अदा करे, उनकी मग़फ़िरत करे। खलील बेबाग साहब उन्होंने भी जो है ना जर्नलिज्म में थे। सफदर भाई इंशाअल्लाह मैं तो आपको जो है ना रवीश कुमार जैसे देखता हूँ। आप में, आपकी न्यूज़ में जो सच्चाई है और आपके जज्बात में, आपकी हिम्मत में, आपकी कोशिश में जो देखता है ना, मुझे जो ना रवीश कुमार नज़र आता है। वो बेचारा जो है ना इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन सच का दामन उसने नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह वो भी जो है ना आपको वहाँ तक आप जाएंगे। मेरी दिली दुआ है कि आप जो है ना उस बुलंदी को छुएंगे। चाहता हूँ कि हमारे ओल्ड एज होम का ताउन करें। असमत पाशा साहब जो है ना आज इनकी इस्लामिक बुक सेंटर किताबों की दुकान है। आज जो है ना 4 सेट कुरान जो है ना कुरान के पारे गिफ्ट करे हैं ओल्ड एज होम को। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल करे। जज़ाकल्लाह खैरा। आज हम यहाँ पे जश्न जमहूरिया मना रहे हैं और ऐसे लोगों के दरमियान मना रहे हैं जिनका मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा आला रखा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि इन लोगों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात शामिल है। ये 73 साल होने के बावजूद भी हम इस आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे होने के बावजूद भी हम क्या हैं, यहाँ पे आज़ाद नहीं हैं। देखिए जब हम ये तिरंगा ले रहे हैं, तिरंगा किसकी बदौलत मिला, किसने इस तिरंगा को शक्ल रूप दिया? यही तिरंगा को शक्ल रूप देने वाले सुरैया तैयब जो कि हैदराबाद से ही, और हिंदुस्तान की सबसे पहली खातून जो ऐसे इदारे शामिल की थी, जो ऐसे इदारे को ईजाद की थी जो डेस्टिट्यूट पीपल्स के लिए, जो गरीब तबकात लोगों के लिए, तो वो भी एक औरत थी जिनका नाम है फातिमा शेख, जो सबसे पहले हिंदुस्तान की तारीख में पहली तालीम याफ्ता औरत थी जिन्होंने ऐसा कदम उठाया। ऐसे वोल्टेजेस का और खिदमत के इदारे सभी शामिल किए। मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, हालांकि हम आज़ाद शहरी हैं। जब हम प्रेम्बल पढ़ते हैं, प्रेम्बल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं 14 से 17 या 21 तक, देखिए 21 तक, तो इतने प्यारे प्यारे रूल्स हम पर लागू किए गए हैं। इसके बावजूद हम क्या हैं, मुफलिस लोगों की जैसी हमारी ज़िंदगी हो रही है। हर जगह हमको डुबोजा जा रहा है, कसा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि हमारे अंदर इत्तेहाद की कमी है। सबसे बड़ा जो हमारे अंदर है वो इत्तेहाद की कमी है। और इत्तेहाद की कमी क्यों है कि हम 72 फिरकों में बढ़ चुके हैं। ये कलिमा पढ़ने वाले होकर भी हम क्या हैं,
72 फिरकों में बढ़ गए हैं, जिसके सबब आज हम गहरा पस्ती में गिरते जा रहे हैं। हालांकि करोड़ों की तादाद में हम मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, मगर हमारी कीमत क्या है? पानी के छाक के तिनकों के बराबर है। पानी के छाक के तिनकों के बराबर इसी वजह से है कि हमारे अंदर हाथ पकड़ने की बजाय पैर पकड़ कर खींचने की फितरत पैदा हो गई है। अगर हम किसी का हाथ पकड़ कर खींचे तो वो खुद आगे आएगा और हमारे खड्डे पे हाथ रखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हमारे अंदर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के पाबंद, यानी ये खुदा, एक रसूल और एक किताब के ईमान रखते हुए इत्तेहाद को कायम ना करें, उस वक्त हम क्या है पस्ती में जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ये कहूँगी, वो पावर या प्रोफेशनल, ये थोड़ी बहुत आगे की बातें हैं, जिससे हमें बहुत सारे लर्नेड पीपल चाहिए, बहुत सारे क्वालिफाइड पीपल चाहिए, बहुत सारे थे। लेकिन अगर मैं जो पहला स्टेप बोलूँगी, जो कि बहुत सारे मैं बच्चों को देखती हूँ, उनके पास एक 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड नहीं है, PUC का एक मार्क्स कार्ड नहीं है, जिससे वो सिर्फ गली के रह गई। अगर उनको पूछेंगे आप उनकी ज़िंदगी क्या है, इस राजीव नगर से अशोका रोड पे ही ख़त्म हो जाती है। उनको मालूम ही नहीं कि क्या दुनिया में हो रहा है। वो बिला झिझक कहते मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं कहीं नहीं जाता, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से प्रेसिडेंट को एक रिक्वेस्ट किया, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, दूसरों को भी इसमें शामिल होने के लिए इसकी एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसमें हम मिनिमम तमाम हमारे कौम के तमाम बच्चे, हर बच्चे के पास ऐसा नहीं होना कि मेरे पास 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स कार्ड नहीं है, ये ऐसा नहीं होना। एक प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करना है। इसके लिए मैं भी इस काम के लिए शामिल होना चाहूँगी। मैं बहुत सारों से ये डिस्कस करती हूँ, बट मैसूर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन थोड़े मैं सुनती हूँ कि इनको प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं, थोड़े एक्सेप्शनल सब्जेक्ट्स एक्सेप्शन करते हैं, जिससे उनको सर्टिफिकेट मिलता है। ये हो रहा है, बट बिल्कुल जो नंबर ऑफ अफराद जो हैं, जो भी जिनके लिए भी ये हो रहा है, बहुत कम है। जो जितना हमारा काउंट है, पॉपुलेशन है, उसमें इट इज़ वेरी वेरी लेस। तो इस मंच पे या ये आई डोंट नो ये क्या सही मंच है या सही स्टेज है, सही है मुझे नहीं मालूम, बट ये ऐसी इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है। अगर वो बेसिक चीज़ अगर हमारे पास आ जाएगी तो रुकावटें बहुत हम टाल सकते हैं। बस इतना कह के तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझसे आपको बहुत मिलके, बहुत देख के बहुत बेहद खुशी हुई। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आमीन सुम्मा आमीन। Intellectually stimulating gathering. I wish you a very happy Republic Day. Let us remember the golden heritage of our country and feel proud to be a part of India. First and foremost, I thank the Almighty Allah for His plentiful blessings and helping us in today's celebration a grand success. To begin with the quote, gratitude is a sign of noble souls. I must remark a proficient sense of gratefulness to our President, Mr. Maqsood Sheikh Sir. Your unique, awesome, possible energy inspires confidence in us. You're an extraordinary person and we're fortunate to have you. And I thank you from the depth of my heart for taking initiative to arrange this wonderful celebration. You are an inspiration and an ideal person. Please give him a big round of applause. I claim to thank our esteemed chief guest, Mrs. Farzana Tabassum, for accepting our invitation, and we are glad to have such a renowned identity from the academics field as a chief guest. We are inspired by your highly speaking words. I wholeheartedly thank you for your charismatic presence, ma'am. Thank you, ma'am. I deep it a proud privilege to thank Mr. Syed Akram for your appealing presence in spite of your busy schedule. On behalf of MHOH, I thank with deep sense of gratitude for valuable presence and life-changing thoughts. Thank you, sir. With immense pleasure, I thank Mrs. Samina ma'am for her kind presence and your team for her unconditional support in organizing this celebration. Thank you, ma'am. Thank again. We could not have pulled this off without you all. My sincere thanks to all the core committee members of management and all members of female core committee members. I am extremely grateful to thank each staff member of MOH for their unconditional support.
I would like to show my gratitude to all the inmates and thank and appreciate the inmates. I thank all the known and unknown. It has remained a profound pleasure. Lastly, I would say freedom in our minds, strength in our words, pride in our souls, pursues pureness in our bowl. Let us salute our India on Republic Day. I request Fazana ma'am to inaugurate our female wing office.